Hello students, now we are going to practice some numerical examples based on the concept that we have learned in the previous videos, and for that first question here is एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसके अंदर 4.07% हाइड्रोजन है, 24.2% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है और इस कंपाउंड का मोलर मास 98.96 ग्राम है। तो क्या होगा इसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.2% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 per gram. What are its empirical and molecular formulas? So first we will take the ratio of mass of this carbon, hydrogen and chlorine. You may take it in any sequence, hydrogen, carbon, chlorine also, but here I have written carbon, hydrogen, chlorine. तो कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन का परसेंटेज कितना है 24.27%। तो हमने पहले ये पढ़ा है मेथड एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने में कि जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। सो 24.27 ग्राम। देन मास ऑफ परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, दैट इज 4.07%। 4.07% will express in gram, 4.07 gram, and then percent of chlorine is given 71.65%। इसको एज इट इज़ ग्राम में जो भी यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है इसको यहाँ पे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे 71.65 ग्राम। अब इनके मोलर रेशियो को हमें यहाँ पे हमने जो लिखा है C/H/Cl, ये हमने मोलर रेशियो लिखा है। अब मोल डिटरमाइन करने के लिए हमें पता है मोलर मास से डिवाइड करना होता है। तो हम जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी मासेस दिए हुए हैं उन्हें उनके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। हमें पता है कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12 ग्राम पर मोल। सो हियर विल डिवाइड बाय 12 ग्राम पर मोल, and then hydrogen 1.008 gram per mole, chlorine 35.5 gram per mole. When we'll solve this, we'll get this will be equals to 2 point. So on solving this, we'll get this calculation we will have 2.021, this calculation will have 4.04, and here we'll have calculation 2.01. Now to get the simplest whole number ratio, जब हमने ये मोल्स रेशियो डिवाइड कर लिया है, डिवाइड करने के बाद मोल्स के रेशियो हमने डिटरमाइन कर लिए हैं, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं है, ये फ्रैक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम इनमें से जो सबसे स्मॉल वैल्यू है उससे सारे वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू 2.021 है। So if we divide here by 2.021 और यहाँ पे 2.021, then we'll get the ratio. This will be 1. This will be approximately, if we solve this, then we will get simple whole number ratio 1, here approximately 2, and here 1. So simple whole number ratio is 1:2:1. So the empirical formula of this compound will become empirical formula will be equals to C1, but 1 we do not write. It is understood that if we have written C means there is one carbon atom, H2 and Cl. Now if we determine empirical formula mass, molar empirical formula mass, then empirical formula mass will be equals to 12.01 plus 2 into 1.008 plus 35.453 exact value, then we'll get 49.5
49.48 ग्राम, 49.48 ग्राम में राइट मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर empirical formula mass, empirical formula mass, molar empirical formula mass will be equals to 98.96 divided by 49.48, and on solving this we will get the value 2. So now we'll apply this in formula. This n value we have determined, we have n value equals to 2. Now we'll determine the molecular formula. We know that molecular formula is equals to empirical formula into n. Empirical formula into n, and we have determined 2, and empirical formula was CH2Cl and then here 2. So the molecular formula will be equals to C2H4Cl2. So this is our molecular formula and this one is our empirical formula. So this is how we determine empirical and molecular formula from the given percentage of elements. Now we'll solve next question. So the question is, in this question, determine empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. हमें आयरन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड का एक फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला डिसाइड करना है जिसमें आयरन का परसेंटेज है 69.9% और ऑक्सीजन का परसेंट है 30.1%. तो ऑब्वियसली इसमें दो ही एलिमेंट है, आयरन और ऑक्सीजन. तो आयरन और ऑक्सीजन का मोलर रेशियो में निकालना है. तो आयरन जो भी परसेंटेज दिया हुआ है आयरन का उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. आयरन है 69.9%, तो इसको परसेंट को ग्राम में डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे. और हमें पता है आयरन का मोलर मास होता है 56 ग्राम पर मोल. ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 30.1%, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 30.1 और ऑक्सीजन का मोलर मास हमें पता है 16 ग्राम. ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, मोल यूनिट लेस होता है. यहाँ पे जो मोलर रेशियो निकल के आएगा 69.9 बाई 56 आएगा 1.248, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.8815. यू मे चेक बाय कैलकुलेशन. मैंने कैलकुलेशन पहले करके रखा है, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लें. तो यहाँ पे मोलर रेशियो आयरन और ऑक्सीजन का क्या है 1.248 एंड 1.885. लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में. तो उसके लिए हमें इसे डिवाइड करना है सबसे छोटे वैल्यू से, और इन दोनों में सबसे छोटा वैल्यू ये है. दिस वैल्यू इज़ 1.248 एंड दिस वैल्यू इज़ 1.8815. सो विल डिवाइड द होल वैल्यू विद दिस 1.248 हियर 1.248. जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1:1.5. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आएगा और ये तो 1 आएगा ही. तो 1:1.5. अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट इन होल नंबर रेशियो. सो टू कन्वर्ट दिस इनटू होल नंबर रेशियो विल हैव Fe. किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये पूरा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए. तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1:2, और यहाँ पे भी 1.5 × 2, तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दिस होल नंबर विल बी 2:2.
3। तो आयरन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ रहा है वो क्या है, 2:3। तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला will be equals to Fe है, Fe और ऑक्सीजन का रेशियो हमने लिया था, ये Fe2O3, Fe और O का रेशियो है 2:3, so empirical formula will become Fe2O3. So this way we have. In this question, calculate the molarity of NaOH in solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution. हमें क्या करना है, NaOH 4 ग्राम NaOH है, उसको वाटर में डिज़ोल्व करना है ताकि हमारे पास एक 250 ml सॉल्यूशन मिले और उस 250 ml सॉल्यूशन का हमें मोलैरिटी डिटरमाइन करना है। एक्चुअली हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी ऑन डिज़ोल्विंग 4 ग्राम NaOH इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी हैव 250 ml। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूट के मास को लिखना है। मास ऑफ सॉल्यूट NaOH है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल्स टू 4 ग्राम। अगर इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास इज 4 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम पर मोल प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल प्लस हाइड्रोजन का अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर मोल। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे दिस वैल्यू विल बिकम 40 ग्राम पर मोल। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें जो भी मास दिया हुआ है उसको मोलर मास से डिवाइड करना है। तो मोलर मास इज 40 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम will cancel out, mole will go upside and will have value N equals to 1/10 मोल। तो हमें 1/10 और 0.1 मोल NaOH है हमारे पास। Now volume of solution is given, volume of solution it is 250 ml और हमें क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी निकालना है। तो फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग। मोलैरिटी M इज इक्वल्स टू वी नो N/V, N/V इंटू 1000। अगर V हमारा ml में है तो इस पूरे वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो विल हैव N इज 1/10, वॉल्यूम इज 250 and here multiplied by 1000. So 250 into 4 we know 1000, so 4 here, so this value will become molarity equals to 4/10 equals to 0.4 mole per liter। तो मोलैरिटी हमारा निकल के आया 0.4। So if we solve this, then from here we can get M is equals to 4/10 is equals to 0.4 mole per liter. So this is our molarity। अगर हम 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सफिशिएंट अमाउंट में डिज़ोल्व करें तो या जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें डिज़ोल्व करें और हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए 250 ml, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी 0.4 मोल। एक्चुअली हमें वाटर भी यहाँ पे 250 ml ही चाहिए क्योंकि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो अगर हम 250 ml में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व कर दें तो हमारे पास 0.4 मोलैरिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। Now we'll see the next. So the next question is the density of 3m solution of NaCl is 1.25 gram per liter per milliliter. Then calculate molality of solution. हमारे पास एक सॉल्यूशन है
3 मोलैरिटी का 3 मोल पर लीटर मोलैरिटी का NaCl सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें उस सॉल्यूशन के मोलैलिटी को डिटरमाइन करना है। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी हमारे पास कितना है 3m। दूसरा क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और वो कितना है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मोलैलिटी स्मॉल m कैलकुलेट करना है। और स्मॉल l का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही है, 3 मोलैरिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, लेकिन हमें क्या पता करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है। सो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम निकालें 1 लीटर का तो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया हुआ है इसलिए हमें 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करना होगा। सो 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय 1.25 ग्राम बाय ml। तो ml कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल्स टू 1250 ग्राम। तो अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन का मास होगा 1250 ग्राम। लेकिन जब हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे तो मोलैरिटी के फॉर्मूला से, डेफिनेशन से, उसके अंदर 3 मोल क्या होंगे, NaCl के 3 मोल NaCl के होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने 1 लीटर लिया है, नंबर मोल ऑफ NaCl 3 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम मास निकालें NaCl का तो मास NaCl का कितना हो जाएगा, मास ऑफ NaCl विल बी 3 और NaCl का मोलर मास इफ विल कैलकुलेट इट विल बी 58.5। NaCl में सोडियम का मोलर मास होता है 23 और क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल। अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 58.5। तो मोलर मास NaCl का 58.5 है और फिर उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ NaCl निकालने के लिए। तो 58.5 इंटू 3 और ये वैल्यू आएगा 5 3 15, 8 3 24 प्लस 1 25 एंड 5 3 15 प्लस 2 17, 175.5 ग्राम। सो दिस विल बी द मास ऑफ NaCl। तो अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट होगा कि इज विल बी इक्वल्स टू, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है और इसमें हमें क्या सब्सट्रैक्ट कर देना है, मास ऑफ सॉल्यूट। पूरे सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट हैं उसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें सॉल्वेंट का ही मास पता चल जाएगा। एंड सो द मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है 1250 माइनस 175.5 ग्राम। इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1250 एंड 175.5। तो 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 9 माइनस 5 4 एंड देन 14 माइनस 7 7 0 1, 1074.5, 1074.5। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है 1 लीटर में, अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे तो उसके अंदर 1074.5 ग्राम क्या होगा हमारा सॉल्वेंट और रिमेनिंग 175.5 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट। मोल्स के टर्म में कहें तो अगर 1074.5 ग्राम अगर हम सॉल्वेंट लें तो इसके अंदर 3 मोल्स क्या होंगे, ये टोटल मास है सॉल्वेंट का। अगर हम 1250 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसके अंदर 3 मोल्स क्या होगा हमारा
NaCl। तो अब मोलैलिटी का जो सिंपल फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। So formula of molality is given mass upon molality will be number of moles divided by mass of solvent in gram, और इस पूरे वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोल्स हमें पता है, हमने निकाल लिया है मोल्स 3, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1 लीटर में मैंने निकाल लिया है, वो क्या है 1074.5 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ से अगर हम विल बी इक्वल्स टू 2.79 m। इस मोलैलिटी का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। सो द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2.79